Hello students, in this video you're going to learn about functions. Now, what do you mean by a function? आप लोगों ने C++ में पढ़ा होगा function क्या होता है. Function means it is going to perform a specific task. Function will be performing a specific task. Let's take a very simple example. If I ask you what is the function of your brain, so the function of your brain is to give signal to your body parts. What is the function of your eyes? To see. Okay, so function क्या है? Function will perform a specific task. It is going to do something. Okay, so you all know in C++ you all have studied about main function. Your program starts and ends with your main function. Similarly, in Python you have two types of functions. First is your built-in function. Second is your user-defined function. Now, there are two types of function. First is your built-in function. Now, what do you mean by built-in function? Built-in functions are those functions whose functionalities are stored in your system. For example, if I say print hello, you get the output as hello. You are not telling your system to print something. Your system already know if the user is giving the print command means the system have to print that data. For example, if I say int 4.5, my int function is going to convert the value into integer. As you can see, I have given the value as 4.5, that is my float value, and the int function have converted my float value to my integer. Okay, so what is a function? Function is going to perform a particular or a specific task. There are two types of functions, built-in functions and user-defined functions. Built-in functions are those functions जिसकी functionality already system में stored होती है. And user-defined functions are those functions which are created by the user. Let's take an example. I have already created a file, so we can save our time. There are multiple programs. We'll be looking one at a time. I have covered all the important parameters of function. Now, first is defining your function. How do you create your function? User-defined function अगर हमें बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे? As you can see, the syntax is def, that is define, and display is your function name. Okay, यहाँ पे आप पहले define लिखोगे, that is def, और आप function का नाम लिखोगे. तो यहाँ पे मेरे function का नाम क्या है? Display. नाम से पता चल रहा है it is going to display some data. Always remember whenever you create a function, हमेशा opening and closing bracket होगा. Okay, now you all know why do we put colon? To provide indentation. ये फंक्शन क्या कर रहा है बच्चों? प्रिंट कर रहा है. क्या प्रिंट कर रहा है? जो भी चीज़ आप डबल कोड में लिखोगे, आपने डबल कोड में क्या लिखा है? आई एम अ फंक्शन. सो माई डिस्प्ले फंक्शन इज गोइंग टू प्रिंट आई एम अ फंक्शन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन. द सेकेंड लाइन ऑफ योर प्रोग्राम इज योर बॉडी, what my function is going to perform. And very important part, your user defined function will execute only when you call your function. That is, you will have to call your function. I mean to say is, जब आप लोग print hello लिखते हो, आप सिर्फ run करते हो, you just press enter and you get the output. You don't have to call your print function, but whenever you create your user defined function, you have to call your function. यहाँ पे हमने क्या किया? function को create किया. यहाँ पे हमने हमारे फंक्शन की बॉडी दी कि हमारा फंक्शन क्या करेगा. इट इज गोइंग टू प्रिंट आई एम अ फंक्शन. दिस फंक्शन विल ओनली एग्जीक्यूट और ओनली रन व्हेन यू कॉल योर फंक्शन. सो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों? सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है. यहाँ पे हमने हमारे फंक्शन को कॉल किया. व्हेन यू कॉल तो आपका ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. सो रन करके देखते हैं. So as you can see, we have got the output as I am a function. Okay. Now, this was your structure. Creating a function, body generate करना and function को call करना. Now, let's proceed further. When you put 3 quotes, आपका जो प्रोग्राम है वो कमेंट मोड में चले जाता है. Now, वहाँ पे हमने एक सिंगल फंक्शन बनाया था. ये प्रोग्राम उसी का कंटिन्यूएशन है. What have I done here? I have created 2 functions. My display function and my add function. डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है बच्चों? प्रिंट कर रहा है. क्या प्रिंट करेगा? आई एम अ फंक्शन. ओके, तो जब भी आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे आपको आउटपुट क्या आएगा? आई एम अ फंक्शन.
Here I have created another function called as my add function. नाम से पता चल रहा है इट इज गोइंग टू परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर और एडिशन ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे हमने क्या किया, इस फंक्शन में हमने 3 वेरिएबल लिया है, a, b और c. a और b को हमने वैल्यू असाइन की है 10 और 20, और c में हमने क्या ऐड किया है बच्चों, a प्लस b दैट इज 10 प्लस 20. तो c में एडिशन चले गया a एंड b का दैट इज 30. और ऐड फंक्शन क्या कर रहा है बच्चों, प्रिंट कर रहा है. क्या प्रिंट कर रहा है, ऐड इक्वल्स टू, जो भी चीज़ आप डबल कोड में लिखोगे वो प्रिंट होगी, एंड वैल्यू कहाँ से मिलेगा हमें c से, और c में वैल्यू क्या है a प्लस बी दैट इज 30. नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये जो डिस्प्ले फंक्शन को जो मैंने कॉल किया है, कॉल्ड इनसाइड माय ऐड फंक्शन, मैंने जो मेरे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है बच्चों, मैंने ऐड फंक्शन के अंदर ही कॉल किया है. इसका क्या मतलब होता है, जब मैं मेरे ऐड फंक्शन को कॉल करूंगी तब कौन रन होगा, डिस्प्ले फंक्शन रन होगा. नाउ आंसर वन थिंग, अगर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले लिखा, मैंने ऐड को कॉल नहीं किया, तो चलेगा क्या, नहीं. क्यों, बिकॉज व्हेन यू कॉल डिस्प्ले सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन रन होगा, लेकिन जब आप ऐड फंक्शन को कॉल करोगे ऐड फंक्शन भी एग्जीक्यूट होगा, एंड एंड में कौन एग्जीक्यूट होगा, डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. तो पहले क्या होगा, कंट्रोल किसके पास जाएगा, ऐड के पास जाएगा, एडिशन करके वो ऐड इक्वल्स टू डेटा प्रिंट करेगा. यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है ऐड फंक्शन ने, सो आउटपुट आएगा आई एम अ फंक्शन. रन करके देखते हैं. सो एज यू कैन सी, पहले एडिशन का आउटपुट आ गया एंड देन डिस्प्ले फंक्शन का आई एम अ फंक्शन. नाउ बच्चों, अगर मैं ये जो लाइन है डिस्प्ले का, ठीक है, अगर ये जो लाइन है मैं ऐड के इमीडिएटली नेक्स्ट लिखती हूँ, तो पहले क्या होगा, जब हमने हमारे ऐड फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल ऐड के पास आ जाएगा. सबसे पहला कौन एग्जीक्यूट होगा, डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, दैट इज आई एम अ फंक्शन. व्हाट इफ मैंने 2 बार कॉल किया, एज यू कैन सी हमने 2 बार कॉल किया है. जैसे आप ऐड को कॉल करोगे पहले डिस्प्ले रन होगा, फिर ऐड का बॉडी रन होगा, एंड देन वापस से हमने किसको कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल किया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हो. सो कंट्रोल एस, आई हैव सेव्ड माय प्रोग्राम एंड नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द कोड. सो एज यू कैन सी, आई एम अ फंक्शन, पहले कौन रन हुआ, डिस्प्ले फंक्शन रन हुआ, एंड देन ऐड फंक्शन रन हुआ, एंड देन वापस डिस्प्ले फंक्शन रन हुआ. सो इन दिस प्रोग्राम यू हैव स्टडीड अबाउट calling one function or multiple function into another function. Okay, so when you create user defined function को create करने के टाइम आपको उसे कॉल करना पड़ता है. जब तक आप आपके user defined function को कॉल नहीं करोगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. होपफुली ये दोनों प्रोग्राम क्लियर है. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. पासिंग आर्ग्यूमेंट, योर नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज आर्ग्यूमेंट फंक्शन. आर्ग्यूमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? Now I'll make a small change into my program. I'll take one more function. Let's take display function. Print user defined. Okay. So बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, हमें डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा. तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने 2 तरीके के फंक्शन लिए हैं. ओके, पहला हमने डिस्प्ले फंक्शन लिया है. फर्स्ट इज माय डिस्प्ले फंक्शन. दिस इज माय डिफॉल्ट फंक्शन. दिस इज माय डिफॉल्ट फंक्शन. द फंक्शन इज टेकिंग नो पैरामीटर. इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पैरामीटर की जरूरत नहीं है. व्हेन यू विल कॉल योर डिस्प्ले फंक्शन इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू द आउटपुट यूजर डिफाइंड. ओके, बट आई हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड एज एवरेज. ये एवरेज फंक्शन को कितना पैरामीटर दिया है बच्चों हमने, पैरामीटर फंक्शन. हियर इट नीड्स 3 वैल्यूज या 3 आर्ग्यूमेंट या 3 पैरामीटर, आप जो चाहे वो बोल सकते हो. ठीक है. सो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, 2 फंक्शन लिया, एक डिस्प्ले फंक्शन लिया और एक एवरेज फंक्शन लिया. डिस्प्ले फंक्शन इज माई डिफॉल्ट फंक्शन. इट डोंट नीड एनी आर्ग्यूमेंट टू एग्जीक्यूट.
बट हमारा जो एवरेज फंक्शन है इसे कितना आर्ग्यूमेंट लगेगा, 3 आर्ग्यूमेंट, ए बी और सी। तो आप जो भी वैल्यू या आर्ग्यूमेंट पास करोगे बच्चों, वो कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, वो जाके स्टोर हो जाएगी मेरे वेरिएबल ए बी और सी के अंदर। नाउ यू ऑल नो हमारा फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, व्हेन यू विल कॉल योर फंक्शन। सो यू विल हैव टू कॉल डिस्प्ले फंक्शन एंड एवरेज फंक्शन। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, डिस्प्ले के पास, एंड आउटपुट क्या आएगा, यूजर डिफाइन। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने किसे कॉल किया, एवरेज फंक्शन को कॉल किया, एंड मैंने एवरेज के साथ कितना आर्ग्यूमेंट पास किया, 3, 2, 4 एंड 6। तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा बच्चों, 2, बी में 4 एंड सी में 6। ओके, फंक्शन के अंदर आएंगे, आई विल जस्ट गिव और राइट द वैल्यू हियर सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 4 एंड सी इक्वल्स टू 6। वैल्यू स्टोर हो गया। तो जब आपने फंक्शन को कॉल किया, आपने फंक्शन के साथ क्या भेजा, आर्ग्यूमेंट फंक्शन के लिए पास किया। नाउ आपने एक वेरिएबल लिया है सम, सम के अंदर आपने क्या किया, ए बी और सी का एडिशन स्टोर किया। आपने और एक वेरिएबल लिया है एवरेज, एवरेज में आपने क्या किया, सम डिवाइड बाय 3, जो भी सम में वैल्यू स्टोर होगी वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो प्रिंट है और सम है उसका कलर पर्पल में है। इट मीन्स माई प्रिंट, सम, दिस आर इनबिल्ट फंक्शन, दिस आर इनबिल्ट फीचर्स ऑफ माई पाइथन। ओके, सिस्टम ऑलरेडी नो सम मीन्स एडिशन करेगा, प्रिंट मीन्स डेटा को प्रिंट करेगा। नाउ यहाँ पे हमने सम को डिवाइड किया 3 से, हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, जो भी चीज डबल कोड में लिखोगे प्रिंट होगा, क्या होगा बच्चों, एवरेज इक्वल्स टू प्रिंट हो गया। वैल्यू कहाँ से आएगा, एवरेज से, और एवरेज में क्या स्टोर्ड है, सम डिवाइड बाय 3, और सम में क्या स्टोर्ड है बच्चों, ए बी और सी का एडिशन। नाउ आउटपुट आ गया। अभी यहाँ पे क्या किया बच्चों, आपने वापस एवरेज फंक्शन को कॉल किया पासिंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, सेम तरीके से प्रोग्राम रन होगा। नाउ आंसर मी व्हाट इफ आई राइट डिस्प्ले फंक्शन इनसाइड माई एवरेज फंक्शन। तो बच्चों क्या होगा, मुझे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले फंक्शन रन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कॉल योर फंक्शन। होपफुली दिस कंसेप्ट इज क्लियर। लेट्स रन दिस प्रोग्राम, कंट्रोल एस एंड एज यू कैन सी हमने पहले एवरेज को कॉल किया, वैल्यू पास किया 246, हमें एवरेज का आउटपुट आया। एवरेज के अंदर हमारा डिस्प्ले फंक्शन है तो डिस्प्ले का आउटपुट आया। वापस हमने एवरेज को कॉल किया विद डिफरेंट पैरामीटर्स, सो वी हैव गॉट द आउटपुट ऑफ एवरेज फंक्शन, एंड अगेन एवरेज फंक्शन इज कंटेनिंग माई डिस्प्ले फंक्शन, सो हमें आउटपुट आया यूजर डिफाइन। सो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को आपने कॉल किया। ओके, नाउ there are two types of function, default and parameterized. Okay, now what if we call our average function into a display function? अभी तक हम डिस्प्ले को एवरेज में कॉल कर रहे थे ना, अभी अगर हम एवरेज को डिस्प्ले के अंदर डालें तो क्या होगा, देखिए इसे हटा देंगे बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको वैल्यू देना होगा, दैट इज 2, 3, 4। तो यहाँ पे पहले से रन करेंगे, कंट्रोल एस एंड एग्जीक्यूट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज माई आउटपुट स्क्रीन। सो आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल द कोड वंस। सी बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यू ऑल हैव टेकन 2 फंक्शन, योर डिस्प्ले फंक्शन एंड योर एवरेज फंक्शन। आपने किससे कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल किया। कंट्रोल किसके पास गया बच्चों, डिस्प्ले के पास गया। आउटपुट क्या आएगा, यूजर डिफाइंड, प्रिंट हो गया। लेकिन आपने उसके बाद किसको कॉल किया, एवरेज को कॉल किया। तो यहाँ से कंट्रोल कौन से फंक्शन के पास जाएगा, सेकेंड यूजर डिफाइंड फंक्शन एवरेज के पास जाएगा, एंड वैल्यू क्या पास हो गई, 2, 3 एंड 4। तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज हाउ यू कॉल योर फंक्शन। ओके, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप आगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट या यू स्टडी एनी थिंग इन पाइथन, फंक्शन इज गोइंग टू रिपीट. So you should know the concept of function and especially the user defined function. Now let's learn the second last part of function. It is also very important. आप लोगों ने C++ में सीखा है void और int. When you take void as your return type, you don't return anything. But whenever you write int main, आप हमेशा प्रोग्राम का लास्ट लाइन क्या लिखते हो, return 0.
Okay, so what do you mean by fruitful function? Fruitful function means the function will return some value. Fruitful function means the function will return some value. Okay, now a very simple program. बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम हमने लिया एरिया. ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट अपने अंदर स्टोर करेगा. सो आर के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 3.14 दैट इज पाई इंटू आर. ये किसको रिटर्न होगा वैल्यू, फंक्शन एरिया को. ओके, आई मीन टू से देखो बच्चों क्या हुआ, आपने एक फंक्शन बनाया एरिया, आपने यहाँ पे लिखा रिटर्न. रिटर्न एक फंक्शन है, वो कुछ तो रिटर्न करेगा. रिटर्न फंक्शन हमेशा वैल्यू किसको रिटर्न करता है, फंक्शन के पास रिटर्न करता है. ओके, जब भी आप रिटर्न करते हो वो रिटर्न किसके पास करेगा, अपने फंक्शन के पास वैल्यू को रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक फंक्शन बनाया एड, अगर मैंने लिखा रिटर्न समथिंग, इट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग, तो ये रिटर्न किसको करेगा, ये जो वैल्यू है एड फंक्शन को रिटर्न करेगा. ओके, सो दिस इज हाउ रिटर्न फंक्शन वर्क्स. नाउ सो इट इज गोइंग टू रिटर्न कैलकुलेशन ऑफ समथिंग. यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, a इक्वल्स टू, हमने एक वेरिएबल लिया a एंड हमने क्या किया, हियर आई हैव कॉल्ड माय फंक्शन, कॉलिंग माय फंक्शन. जैसे आपने फंक्शन को कॉल किया, आपने r के पास कौन सी वैल्यू भेजी बच्चों, r में हमने क्या स्टोर कर दिया, 4 स्टोर कर दिया. ठीक है, तो क्या कैलकुलेट होगा, यहाँ पे कैलकुलेट होगा 3.14 इंटू 4 इंटू 4. यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया, आपने इस वेरिएबल के अंदर क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया. ठीक है, एरिया फंक्शन को आपने कॉल किया एंड जब आपने एरिया फंक्शन को कॉल किया आपने उसमें वैल्यू कौन सी भेजी, 4. तो आर में क्या स्टोर हो गया बच्चों, 4. रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, 3.14 इंटू 4. इसको कैलकुलेट करके जो भी इसका आंसर आएगा वो कौन से फंक्शन में जाके स्टोर हो जाएगा बच्चों, एरिया फंक्शन में. एंड एरिया फंक्शन आपने कौन से वेरिएबल में स्टोर किया, ए के अंदर. ओके, सो आप क्या प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट एरिया इक्वल्स टू, डबल कोड में लिखा है तो प्रिंट हो जाएगा. और आप कौन सी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो, आप ए वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो. और ए के अंदर बच्चों आपने क्या स्टोर की है, आपने स्टोर किया है एरिया फंक्शन विद पैरामीटर 4. सो लेट्स एग्जीक्यूट, आई हैव डन कंट्रोल एस एंड लेट्स जस्ट रन आवर कोड. सो एज यू कैन सी एरिया इज 50.24. सो जो भी फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रूटफुल फंक्शन कहते हैं. सो लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट पार्ट. नाउ अभी तक हमने क्या देखा बच्चों, अभी तक आपने देखा फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस कैसे बनाते हैं एंड एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं, डिफॉल्ट फंक्शन एंड पैरामीटराइज्ड फंक्शन, एंड लास्ट में हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय फ्रूटफुल फंक्शन. नाउ लेट्स लर्न the last concept, that is boolean function. Now बच्चों what do you mean by boolean? If I write 2 is equal to 5, 2 equal to operator and 5, 2 और 5 equal नहीं है हमें पता है, तो आउटपुट क्या आएगा बच्चों, false. 2 is equal to 2, 2 और 2, 2 and 2 is equal, so आउटपुट क्या आएगा, true. So what do you mean by boolean function? boolean function में दो पैरामीटर होते हैं बच्चों, एक होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स. दैट इज 0 एंड 1. 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हियर आई हैव टेकन अ वेरिएबल x एंड माय दिस x इज एन एम्प्टी ट्यूपल. नाउ इफ आई राइट प्रिंट x, ओके, सो हमें एम्प्टी ट्यूपल मिलेगा. लेकिन अगर मैंने लिखा प्रिंट बूल फंक्शन, सो ये क्या करेगा बच्चों, बूल फंक्शन क्या करेगा, x की वैल्यू चेक करेगा और x क्या है, एक एम्प्टी ट्यूपल है, सो आपका आउटपुट क्या आएगा बच्चों, फॉल्स. नाउ इफ आई राइट x इक्वल्स टू 1, मैंने x के अंदर वैल्यू स्टोर की, चलो रैंडम वैल्यू लेते हैं 4, मैंने x में क्या स्टोर किया बच्चों, 4 स्टोर किया. नाउ व्हेन आई राइट प्रिंट बूल, बूल मीन्स बूलियन x, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू. सो इफ योर वेरिएबल इज एम्प्टी आपको आउटपुट आएगा फॉल्स, एंड जब भी आपके वेरिएबल के पास वैल्यू है तो आपको आउटपुट आएगा ट्रू. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. इफ आई राइट प्रिंट 3 इज लेस देन इक्वल टू 4,
output 3 is less than equal to 4, 3 is not equal to 4 but 3 is less than 4, so output क्या आएगा? True. So this is how your boolean function work. Hopefully this concept is clear. You can use boolean with if else, for loop. Okay, so boolean में दो पैरामीटर होते हैं बच्चों, true and false. When your value is 0 you get the output as false, and when your value is not 0 you get output as true. So this was about functions. Hopefully the concept is clear. If you have any doubt you can put the query in the comment box. Thank you students.